Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life where today I want to talk about the topic of be better or stay better. So if you actually want to be better, do better in your life, then you have to come along with me. And if you don't have any such thought process, you are just fine wherever you are, you just don't want to work on yourself, which I'm sure cannot be the intent of anyone. So please, I insist, come along with me. Let's talk. Let's, get to the video. Please, everyone, all of you, just listen to me. Sit straight and very quietly. Just think in your head. You can close your eyes for this if you want, and if you are okay with open eyes, it's your choice. Just think in your head one of your favorite place. It can be anything. It can be your home, it can be your bed, it can be samudra ka kinara, it can be pahar, it can be anything. Just one of your most favorite place. Just think of that place in your head and imagine yourself in that place for a minute. Not even for a minute actually, but just imagine yourself in that place. Please do this, I insist, because otherwise you will not get what I'm trying to say. So when you actually will do this, when you actually will give yourself 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, how much ever is possible for you, and you will think of yourself in the place which is your favorite, most favorite place, then with that thought you will get a kind of feeling. The moment I say your favorite place, जैसे ही आप उसको सोचते हो ना, आपकी फेवरेट जगह, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है क्योंकि आप कुछ अपना फेवरेट सोच रहे हो, राइट? तो जब हम कुछ भी अपना अच्छा सा सोचते हैं ना, तो हम अच्छा ही फील करते हैं. और अगर आप इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही आप इसको सोचोगे, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी और उस अच्छी सी फीलिंग के साथ आपको एक वाइब्रेशन फील होगी अपनी बॉडी में. आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर. आप अगर इस चीज़ को एक सेंसेशन, व्हेन आई से वाइब्रेशन, आई मीन टू से काइंड ऑफ सेंसेशन विच इज़ लाइक यू विल जस्ट फील गुड. सीधे साधे शब्दों में आपको बस अच्छा लगेगा. तो जब आप इस तरह का कुछ सोचते हो, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इस बात की? एक थॉट से, करेक्ट? एक सिंपल सा थॉट, मेरी फेवरेट जगह और मैं अपनी फेवरेट जगह पर. जैसे ही आपने ये सोचा, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आई. जैसे आपको वो अच्छी सी फीलिंग आई, आपने पूरी बॉडी में कुछ अच्छा सा फील करा. भले फिर वो आपने 20 सेकंड करा, 30 सेकंड्स करा, ये आपकी कैपेसिटी थी कि आप कितनी देर उस थॉट को होल्ड कर पाए, और ये आपकी कैपेसिटी थी कि आपने उस चीज़ को कितनी देर सोचना चाहा. बट डेफिनेटली जितनी भी देर सोचना चाहा, उतनी देर तक के लिए आपने उस अच्छी सी फीलिंग को फील करा, करेक्ट? सो बेसिकली हम जो सोचते हैं, हम वैसी वाइब्रेशन में चले जाते हैं. ये बात सिर्फ मैं आपको बताना चाहती थी, फॉर विच आई एक्चुअली स्पोक ऑल दिस थिंग्स. सो जिस तरह से ये चीज़ इस डायरेक्शन में वर्क करती है, उसी तरह से सेम बात इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क करती है. लाइक इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू और फॉर लाइक एनी नेगेटिव थॉट, देन इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट एन ऑपोजिट काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन योर बॉडी. अभी एक ख़राब से थॉट को आप 10 सेकेंड के लिए भी रिविजिट करोगे ना, यू विल सी, आप suddenly you will feel that kind of bad energy in your body, with that kind of bad vibration. So सारी बातों को बताने का मेन रीज़न ये है कि आप जिस तरह का भी थॉट अपने दिमाग में लाओगे ना, वैसी वाइब्रेशन आ जाएगी. और जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है वो ये कहता है कि लाइक everything around you, everything in your life will work on vibration. So when I say stay bitter is like one thing which I see a lot around me, which is like jealousy. आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, समझी भी होगी शायद. पहले ना, बहुत काफ़ी टाइम पहले, आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस फीलिंग ऑफ जेलेसी. आई हैव अ थिंकिंग लाइक आई हैव एन approach that whenever I'm hearing something, I will get into the depth of it, that what do they mean when they are saying this thing, what are they trying to say actually. So here I always used to think as a kid कि यार what is this feeling of jealousy after all, like people used to tell me also, even my own family member, my parents also, that okay, this person is jealous of you, that's why this person is doing this bad with you, that because a lot of times people will behave bad with you even as a kid, even when you are growing, you are in school, people will just do bad things around you or with you, and you will just not realize why, बिकॉज यू कांट सी अ रीज़न. आपको क्या लगता है कि जब आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, या आपने किसी का कुछ बुरा किसी से कहा या उनके साथ करा, तो वो रिवर्ट में आपके साथ वो करेंगे. ये आपको लॉजिकल समझ में आएगा, राइट? कि बिकॉज आई डिड सो इट हैपेंड विद मी और दैट पर्सन डिड. बट सो मैनी टाइम्स आई हैव सीन दिस थिंग टिल डेट आई सी दिस थिंग दैट आपने कुछ करा ही नहीं है, आपने लिटरली कुछ भी नहीं करा है, एंड समवन इज़ जस्ट बीइंग बैड टू यू and saying back to you either on your face or at your back or even doing back to you, and you will just keep wondering why is it even happening.
सो ये जो वर्ड होता है ना जेलेसी, ये एक बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है. पहले मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आता था, बट नाउ सिंस आई हैव अंडरस्टूड दिस इन अ वेरी सिंपल वे विच आई वांट टू कन्वे टू यू एज वेल. जेलेसी बेसिकली मीन्स जब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम फीलिंग जेलस विथ समवन, ओके, सो इट सिंपली मीन्स कि जो उस इंसान के पास है, वट एवर, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी पर्सनैलिटी, इट कैन बी लुक्स, it can be dresses, it can be possessions, it can be success, work, whatever. But you know, there is something with that person which I want, which I don't have, so I want. Or maybe which is like I find it ki this is something very good or this is something very attractive and I want that thing. So that is actually called jealousy. कि जब हम किसी को देख रहे हैं, हम किसी के पास कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई सामान देख रहे हैं और हमको वो बड़ा ही लाइक वी जस्ट वॉन्ट इट इन एनी वे एट एनी कॉस्ट. सो वहाँ पर आती है जेलेसी. तो जैसे सबसे पहला जो इसका थॉट, ये बात आती है ना कि किसी के पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आपने उस किसी को और उस किसी की उस चीज़ को अपने से ऊपर कर दिया और अपने आप को नीचे कर दिया, क्योंकि आपने सोचा कि यार उसके पास है और मुझे चाहिए. और ऑफकोर्स आप राइट वे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप राइट वे में सोचोगे तो आप इंस्पायर होगे, विच इज़ आई थिंक काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ जेलेसी. क्योंकि लोगों के पास अच्छी चीज़ें देखना, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी हैं, जिनके पास बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और हमको देख के सोचते हैं कि वाओ दिस इज़ सो गुड, यू नो, दिस इज़ सो मच लाइक यू ऑल्सो वॉन्ट दैट थिंग. बट वेन यू आर सीइंग इट एंड गेटिंग इंस्पायर्ड कि वाओ यार, जब इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने करा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. लाइक यू नो, इफ़ ही हैज़ द कैपेसिटी और शी हैज़ द कैपेसिटी, तो आई कैन ऑल्सो डू. इफ़ आई वर्क हार्ड, if I work right way, I can do it. Definitely I can do it. That is the way you get inspired. Okay, that is called inspire होना. That is inspiration, which is a very positive thing. उसको सोच के आप कभी negative नहीं जाओगे. Tell you, it is just going to make you bitter. You will never get anything good when you feel jealous. You will never get anything good because it's a very negative energy. So likewise, the way I explained you just now that how a good thought can change your vibration into good vibration, the same way a bad thought can never make you feel good. And until you don't feel good, you cannot have anything good. ये ऐसा नहीं है कि तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी पे एप्लीकेबल होगा, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये बिल्कुल प्रॉपर एक लॉ है, जो वाइब्रेशंस का लॉ है, जो यूनिवर्सल है, जो फिज़िक्स का है. तो आप चाहो या ना चाहो, ये आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ पे चलेगा और चलेगा ही चलेगा. कि अगर आप बैड थॉट में हो, अगर आप बैड फीलिंग में हो, यू कैन नॉट हैव गुड वाइब्रेशन. फॉर गुड वाइब्रेशंस यू हैव टू बी इन द गुड फीलिंग, यू हैव टू बी इन द गुड थॉट. आपको अगर किसी भी व्यक्ति को देख के कभी कोई गलत सी फीलिंग, नेगेटिव सी फीलिंग आती है ना, दैट उसके सामान से, उसकी किसी चीज़ से, या उसकी सक्सेस से, उसके काम से, जस्ट सिट डाउन एंड राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. दैट यार आपको क्या फील हो रहा है, सबसे पहले ये लिखो. आपके मन में क्या थॉट आ रहा है. यू नो, व्हेन यू पेन डाउन, आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे क्या सोचने में आ रहा है कि यार इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, या इसके पास ये चीज़ इसको मिल गई है, इसने कर लिया है, मैंने क्यों नहीं करा है. जब आप उन चीज़ों को लिखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है. जब आप देखोगे कि अगर किसी के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, तो आप उसको रियलाइज़ करोगे कि इसमें आपको कुछ भी ख़राब फील करने की बात नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल दैट यू कैन ऑल्सो अचीव दैट थिंग with your work, with your hard work. और अगर it's about personality, it's about good looks, whatever it is, you can always achieve. I do not mean at all कि ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचो. इसीलिए मैंने वो आपको एक्सरसाइज बताई कि जब आपको किसी को देख के अगर ख़राब सी फीलिंग्स आती है, अगर नेगेटिव फीलिंग आती है, तो आपको ये बैठ के लिखने की ज़रूरत है, जस्ट टू फिगर आउट कि मुझे ये ख़राब सी थॉट्स और फीलिंग्स क्यों आ रही है. ये आपको कोई आके बता नहीं पाएगा, ये आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में चल रहा है ना, जो चल रहा है आपके थॉट प्रोसेस है, आप ही जान सकते हो. उसको सॉर्ट आउट करोगे तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग बहुत रॉन्ग था, जो आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है. आई हैव सीन पीपल मोस्टली टॉक अबाउट अदर्स लाइक यू नो इन कंपैरिजन. ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती कि हमें कभी भी किसी के बारे में कंपैरिजन में बात करने की क्यों ज़रूरत है. इतना कॉमन ये चलता है सब जगह. हाउ पीपल टॉक, यू नो, तुम इससे बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे मार्क्स इससे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी ड्रेस इससे अच्छी है, अरे तुम्हारा फेस तो इससे भी ज़्यादा ग्लो कर रहा है. अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आप बस इतना बोलो ना, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, राइट, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, या तुम बहुत अच्छा गाती हो. इज़ दैट नॉट अ कॉम्प्लीमेंट इनफ टू गिव?
वाई यू हैव टू कंपेयर, वाई यू हैव टू से कि तुम उससे भी अच्छा करती हो, इससे भी अच्छा करती हो, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ स्प्रेडिंग नेगेटिव एलिमेंट एवरीवेयर, बिकॉज आप कंपेयर कर रहे हो आज, लाइक यू नो, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन मोस्टली. तो आई रिक्वेस्ट, if you talk like that or if anybody around you talk like that, please stop doing this. It's not a good pattern. It's not going to help anyone ever. आपको चाहे जो भी लगता हो, शायद ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग क्रिएट कर करके लोगों को लगता हो कि यार कंपटीशन के चक्कर में कुछ हो जाएगा, लोग अच्छा कर लेंगे, बट इट डज़ नॉट हेल्प. एंड ऑफ डे आप बिटरनेस दे रहे हो सामने वाले के दिमाग में, आप बिटरनेस दे रहे हो उसके मन में, उसके सोचने के तरीके में, जो ना आपको हेल्प करने वाला है और ना उसको हेल्प करने वाला है. सक्सेस is very different for everyone. For everyone it is never the same thing, like everyone has different dreams. किसी को कॉर्पोरेट्स में जॉब करने में मज़ा आता है, वो उसके लिए सक्सेस है. किसी को कोई आर्ट में है, लाइक उसको पेंटिंग डांसिंग में मज़ा आता है, वो उसके लिए सक्सेस है. सो सक्सेस इज़ नेवर कॉमन फॉर एनी वन, ओके, नॉट इवन इन मनी वे, लाइक इट्स नॉट इवन दैट के एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न लॉट ऑफ मनी. नो, not everyone wants to earn lot of money. Not everyone wants everything big, okay? Some people want it big, some people want it normal. So the whole thing is, when it's so different for everyone, then there is no point and there is no need to compare. This jealousy feeling is going to just destroy you completely, because it will start, it is existing in your head. वो आपके अंदर पे है. तो अगर आपके दिमाग में कोई इतनी ख़राब सी, इतनी नेगेटिव सी फीलिंग एग्जिस्ट हो रही है जो आपको कभी अच्छा फील ही नहीं करने देगी, एंड देन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन आप कभी अच्छा फील ही नहीं कर पाओगे अगर, और आप ख़राब फील करते रहोगे, तो आपका अच्छा होगा कैसे? बिकॉज इट्स अबाउट लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन मीन्स कि जैसे आप वाइब्रेशन में रहते हो वैसी चीज़ें आपके पास आती हैं. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप ख़राब वाइब्रेशन में रहोगे और अच्छी चीज़ें आएंगी. नो, सेम वे आप अच्छी वाइब्रेशन में रहोगे और ख़राब चीज़ें आएंगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे इन दिस एपिसोड, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन everyone's life, all of us, okay, because it's really like it controls our life a lot. क्योंकि ये जो फीलिंग ऑफ जेलसी है ना, आप भी अपने चारों तरफ देखोगे आपको बहुत दिखेगी, बहुत सारी जगह, और इसका कोई एज ग्रुप नहीं है. लिटरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लाइक किड लेवल, जहाँ से बच्चे समझना शुरू करते हैं ना, वहाँ से लेकर बड़ों तक आपको ये चीज़ दिखेगी. आप देखोगे कि हर ख़राब एक्सपीरियंसेस, हर ख़राब सी जो लोगों की टेंडेंसी एक दूसरे के लिए चल रही है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न यही होता है, जेलसी. इट इवन एग्जिस्ट in between the family members, in between the siblings, which is really disappointing, but it does exist. जो नहीं होना चाहिए. You have to get rid of it. You just have to get rid of it. You have to feel good. You have to stay sorted. ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं हाउ टू स्टे सॉर्टेड. वन जो मैंने आपको भी बताया, यू हैव टू नोट डाउन, वर्क ऑन द थॉट प्रोसेस. आपके मन में चल क्या रहा है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप बुरा क्यों फील कर रहे हो. किसी की सक्सेस तो कितनी अच्छी चीज़ होती है, राइट? किसी की खूबसूरती देखना, किसी को कुछ भी अच्छा देखना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होना चाहिए आइडियली हम सबके मन में. तो क्यों नहीं हो रही है किसी, हम रादर आई हैव सीन पीपल, अगर इफ़ टू पीपल आर इन लव, हम किसी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप को देख के, प्यार को देख के, समवेयर just because other people don't have it, they just feel bad, jealous, they just feel kind of negative feeling, which is destructive, very bad. Please work on it. Please circulate this particular thought process. Please circulate this video if required to your people. I just want everyone to understand that it is so bitter. इस नेगेटिव फीलिंग के साथ, इस बिटरनेस के साथ आप कहीं नहीं जा रहे हो. ये जो बिटरनेस है, ये माइंड से शुरू होती है, या आपके शब्दों में आती है, या आपकी फीलिंग्स में आती है, या आपके बिहेवियर में आती है, या आपके एक्शंस में आती है. ये सब जगह आ जाती है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड. जब आपने किसी को देखा एंड आपको ख़राब लगा, बस दैट्स इट, कि उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, या वो लोग इतने खुश क्यों हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, या वो लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, मैं क्यों नहीं हूँ. वो इसलिए हैं क्योंकि वो अच्छा सोच पा रहे हैं, वो इसलिए खुश हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने सही तरह से सोचा, सही तरह से सोच के दे हैव बीन एबल टू डू दैट. दैट इज़ द रीज़न ऑफ देयर हैप्पीनेस, दैट इज़ द रीज़न ऑफ देयर सक्सेस, दैट इज़ द रीज़न ऑफ देयर वट एवर दे हैव अचीव्ड. No other reason. And with this thought process, this particular jealous thought process, you can never reach there. You can never even get there. और पता है, कभी गलती से आपको कोई ऐसे लोग दिख जाएंगे ना, जिनके पास कुछ मिल भी गया है पर वो थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है. लेट मी टेल यू, वही वो लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, बट आप देखोगे दे आर नॉट हैप्पी.
दे आर जस्ट नॉट हैप्पी बिकॉज उनको खुश नहीं रह पाएंगे ना. पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के बिना आप खुश कैसे रहोगे? वाइब्रेशन तो बुरी कर रखी है ना, तो कैसे खुश रहोगे? टेल मी. सो इवन इफ इन लाइक some of the examples, if you see that यार इसके पास बहुत कुछ है, इसने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, बट देखो हैप्पी नहीं है, सुकून ही नहीं है ना लाइफ में, पीस नहीं आएगा. बिकॉज पीस तो totally related with your law of vibration. So you have to accept it, you have to digest it, and you have to actually work on it. So thank you so much. On that note, I want to end this episode. I'll be back very soon with a new episode. And I just want to tell one more thing here, that if any of you ever want to suggest, talk, or ask me anything, my email ID is mentioned in the details. So you can anytime write to me, and however, whenever it is possible, I would definitely revert and talk. So if you want that thing, we can do that thing as well. Also, see, I'm better with my cough and cold. It's not completely gone, but I'm much better. I have got this. It is the result of viral infection. I don't know, sometimes people say that when you have internal fever and it comes off like this. So it happens with me sometimes once in a year. It's a mark. I hope it goes early, and things will be fine. So that's all. Once again, thank you so much, and I'll be back soon with a new episode. Till then, take care. Bye bye. Love you all.